Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We have a great show lineup for you guys, but before that, this is me reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Legendary actor Dilip Kumar passes away at 98. Saif Ali Khan lands in controversy yet again. Ranveer Singh and Alia Bhatt's Rocky और रानी की प्रेम कहानी to go on floors in August. A look back at late actor Dilip Kumar and Saira Banu's love story. नहीं रहे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। पिछले कुछ सालों से बीमारियों से जूझ रहे दिलीप साहब ने आज सुबह मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिग्गज बॉलीवुड सितारों ने जताया अफसोस। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कुछ कलाकार किसी दौर के नहीं होते, उनका काम और वो खुद अपने आप में एक दौर होते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सुनहरे दौर का दूसरा नाम है दिलीप कुमार, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर के ऑफिशियल होते ही बॉलीवुड स्टार से लेकर हिंदी सिनेमा के सभी चाहने वाले गहरे दुख में हैं। We've got more details for you with this story. बॉलीवुड के सबसे पहले खान, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर वेटरन एक्टर और लेजेंड मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इस ट्रैजिक अपडेट को दिलीप कुमार के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया उनके फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने। The official post read, "With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Sahab few minutes ago. We are from God and to Him we return." He had been admitted to hospital after experiencing breathlessness on June 30th, and his demise was confirmed by his family doctor as well. खबर के ऑफिशियल होते ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी। His official post read, "Dilip Kumar ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. Rest in peace." राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने ऑफिशियल पोस्ट में दिलीप साहब के नाम को याद करते हुए लिखा, Dilip Kumar summarized in himself a history of emerging India. The thespian's charm transcended all boundaries. He was loved across the subcontinent. With his demise, an era ends. Dilip Sahab will live forever in the heart of India. Condolences to family and countless fans. राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से दिलीप साहब के बारे में कहा कि उन्हें कई जनरेशंस तक याद किया जाएगा। His official post read, "My heartfelt condolences to the family, friends and fans of Dilip Kumar ji. His extraordinary contribution to Indian cinema will be remembered for generations to come." Big B अमिताभ बच्चन, जो खुद दिलीप कुमार को अपना मेंटोर और एक इंस्टीट्यूशन मानते थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "An institution has gone. Whenever the history of Indian cinema will be written, it shall always be before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss." इसी तरह अक्षय कुमार ने एक इमोशनल पोस्ट करते हुए दिलीप साहब को याद किया। To the world, many others may be heroes. To us actors, he was the hero. Dilip Kumar sir has taken an entire era of Indian cinema away with him. My thoughts and prayers are with his family. Om Shanti. Ajay Devgan shared a throwback photo and wrote, "Shared many moments with the legend. Some very personal, some on stage. Yet, nothing really prepared me for his passing away. An institution, a timeless actor. Heartbroken. Deepest condolences to Saira ji." If I can't share a cup of tea with him, it's just not worth it. I missed him so badly. So मैं घर आई, I finished my schedule and I just announced that I will not be working again.
लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने आज सुबह हम सबको आखिरी बार अलविदा कह दिया। उनके साथ ना सिर्फ बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हुआ, पर साथ ही टूट गई एक ऐसी जोड़ी जिसकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री और कंपेनियनशिप हर आम और खास प्रेमी जोड़ी के लिए एक मिसाल होगी। कैसे शुरू हुआ दिलीप कुमार और सायरा बानू के एक साथ आने का सफर और क्या मोड़ आई उनकी कहानी में, सब कुछ करेंगे याद इस स्टोरी के साथ। 55 सालों से ज्यादा चला शादी, प्यार और दोस्ती का रिश्ता आज सुबह दिलीप कुमार के दुनिया से जाने के बाद की खबर से खत्म हो गया। लेकिन रिश्ते निभाने वाले भले ही चले जाएं, जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं। आज इस एवरग्रीन जोड़ी को याद करते हुए जानते हैं इनके रिश्ते की कहानी इस स्टोरी के साथ। वेटरन एक्टर और लेजेंड दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनके निधन के बाद अब उनकी कहानी, उनके काम और फिल्मों की लेगेसी और उनके जिंदगी की हमसफर सायरा बानू पीछे छूट गई हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानू की रियल लाइफ लव स्टोरी किसी भी रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट को मात दे सकती है। भले ही वो 22 साल के एज गैप की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामना हो या फिर अगले 55 सालों तक जिंदगी के हर मोड़ पे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए साथ चलना। दिलीप साहब और सायरा जी मेड फॉर ईच अदर की सबसे खूबसूरत मिसाल थे। They always stood by each other's side through the thick and thin of life. सायरा जी ने कई इंटरव्यूज में यूसुफ यानी दिलीप साहब के लिए अपने प्यार और दीवानगी का जिक्र किया है। 12 साल की उम्र में ही वो ये मान चुकी थी कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। मुगले आजम के प्रीमियर पर जब दिलीप कुमार नहीं पहुंच पाए तो 16 साल की सायरा का दिल टूट गया, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुछ ही सालों बाद उनका नाम दिलीप कुमार के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। साल 1966 आने तक सायरा जी एस बॉलीवुड अदाकारा बन चुकी थी। 1961 में फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ डेब्यू करने के बाद सक्सेस और शोहरत उनके कदमों में थी, लेकिन अपने जिंदगी के सबसे ऊंचे मकाम पर उन्होंने दिलीप कुमार का हाथ थामा when Dilip Kumar had proposed to Saira Banu. With the blessings of their respective families, she had quickly agreed and they didn't let their age difference ever become an obstacle in their marriage and eventually got married in October 1966. इसके बाद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि एज डिफरेंसेस और दोनों एक्टर्स के सेलिब्रिटी स्टेटस के चलते ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन सबको गलत साबित करते हुए सायरा जी ने 1976 में फिल्मों में ना काम करने का फैसला लिया और अपनी शादी और दिलीप कुमार के साथ रहने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। बहुत अच्छी बात मैंने क्या की that when I was right on the top and I had so many assignments that I was to do. Sure. At that very time I decided to just give it all up because you see in a marriage like this of two celebrities I believe जो मेरी अपनी यकीन की बात है वो ये है कि one person has to take a back seat. सायरा जी के लिए दिलीप कुमार उनके जिंदगी के कोहिनूर थे और तमाम जिंदगी उन्होंने अपने साहब को किसी नायाब तोहफे की तरह संभाला और उनका ख्याल भी रखा। जिंदगी के आखिरी लम्हों तक ये जोड़ी एक दूसरे के साथ रहते हुए मोहब्बत की मिसाल कायम करती रही और जब भी बात सच्चे रिश्ते और जज्बात की होगी, दिलीप कुमार और सायरा बानू का नाम हमेशा लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा। आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। एक सदी का अंत है। कुछ भी कह लो, अभी वो चला गया जिसे हम देख के एक्टर बनना चाहते थे, वो एक मिसाल है, उनका कोई सानी नहीं उनका थी। फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप। Myself have been one of the biggest fans of Yusuf Saab and I think he has been a huge influence on me.
I think whenever you watch Dilip Saab's films and everything, I've been very fortunate that in my lifetime I got to know him. दिलीप साहब जो हैं एकदम हाउ टू से यार इवन द वर्ड्स लाइक आइकॉन वाइकॉन बहुत कम है उनके लिए. आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द एक्टर. आई नो देम पर्सनली सो आई से दैट. वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की जिंदगी का सफर आज पूरा हुआ. देश के प्रधानमंत्री से लेकर दिग्गज बॉलीवुड सितारों ने दिलीप साहब की शख्सियत और उनके काम को याद किया. कई सेलिब्रिटीज उनके आखिरी सफर का हिस्सा भी बने. लेकिन उनके आखिरी कुछ सालों में वो कौन से सितारे हैं जो उनसे मिल पाए, ये बताएंगे हम इस कहानी के साथ. यूं तो सारी उम्र चले रिश्ते संभालने के सिलसिले थे, पर वो कितने खुशनसीब हैं जो उनसे आखिरी बार मिले थे. बॉलीवुड के कोहिनूर 5 दशकों से ज्यादा अपनी कलाकारी से इंडियन सिनेमा के चाहने वालों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार अब नहीं रहे. लेकिन सिर्फ आखिरी वक्त में नहीं, पर आखिरी कुछ सालों में भी कई दिग्गज बॉलीवुड सेलेब्स दिलीप साहब से मिलने, उनसे बहुत कुछ सीखने और उनका हाल पूछने पहुंच जाते थे. कौन है ये सितारे, आप जानेंगे इस स्टोरी के साथ. दिलीप कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, जिनसे कई वेटरन एक्टर्स और यंग बॉलीवुड स्टार्स फिल्म्स, एक्टिंग और जिंदगी के बारे में सीखते आए हैं और आने वाली कई जनरेशंस उनके काम से इंस्पायर होती रहेंगी. पिछले कुछ सालों से दिलीप साहब अपनी बिगड़ती तबीयत से परेशान रहते थे. ऐसे में कई सीनियर और लीडिंग बॉलीवुड स्टार्स उनसे मिलने और उनका हाल जानने पहुंच जाते थे. बिग बी, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार को अपने मेंटर मानते थे और मौका मिलते ही उनका हाल जानने पहुंच जाते थे. आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, एन इंस्टीट्यूशन हैज गॉन. मैं तो बहुत पहले, बहुत ही छोटी उम्र से उनका फैन रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा. बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप. किंग खान शाहरुख दिलीप साहब के बहुत क्लोज थे. सायरा बानू ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आई हैव ऑलवेज सेड दैट इफ वी हैड अ सन ही माइट हैव लुक्ड लाइक शाहरुख खान. दिलीप साहब जो हैं एकदम हाउ टू से यार इवन द वर्ड्स लाइक आइकॉन वाइकॉन बहुत कम है उनके लिए. आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द एक्टर. आई नो देम पर्सनली सो आई से दैट. 2017 में प्रियंका चोपड़ा भी दिलीप और सायरा जी से मिली, जिसकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीशेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इट वाज लवली सीइंग बोथ ऑफ यू. Thank you and so good to see Saab much better. Much love. I think whenever you watch Dilip Saab's films and everything, I've been very fortunate that in my lifetime I got to know him. I've been very close to Dilip Saab and Saira ma'am, and they've been very close to my family. म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज A.R. रहमान, जिनका ओरिजिनल नाम भी दिलीप कुमार ही था, और लता मंगेशकर ने भी दिलीप साहब को विजिट किया था. डायरेक्टर मधुर भंडारकर भी आखिरी बार दिलीप कुमार को देखने पहुंचे थे और अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने लिखा, I was fortunate enough to pay my tributes to the legendary actor Dilip Kumar sir in his last journey. #RIP दिलीप कुमार sir. ये सारी मुलाकातें अब दिलीप साहब के जाने के बाद बस याद ही बनकर रह गई हैं, जो हम और आप बड़े इज्जत और आदाब से अपने दिलों में संभाल कर रखेंगे. आखिर क्यों सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस के पोस्टर रिलीज होने के साथ ही उठ गए सवाल? ऐसा क्या है इस पोस्टर में जो फिल्म को बॉयकॉट तक करने की मांग कर दी गई है? सैफ अली खान के ऊपर एक बार फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनके फिल्म के पोस्टर में ही छुपे हैं सारे सवालों के जवाब. हाथ में मॉडर्न त्रिशूल, चमकती हुई माला, पीछे मंदिर का सेटअप और बैकग्राउंड में साधु बाबा, ये सब कुछ नजर आ रहा है सैफ अली खान की अगली फिल्म भूत पुलिस के पोस्टर में, जिसके रिलीज होते ही मच गया तांडव और शुरू हो गई ट्रोलिंग. जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ. सैफ अली खान की फिल्मी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज का तांडव चल रहा है. साल की शुरुआत में उनकी वेब सीरीज तांडव को लेकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के इल्जाम लगाए गए थे. वेब सीरीज के मेकर्स के खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स भी फाइल की गई थीं. इसके बाद फिल्म आदि पुरुष में अपने किरदार रावण को लेकर दिए गए बयान पर भी सैफ अली खान को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और अब उनकी फिल्म भूत पुलिस के पोस्टर रिलीज के बाद भी कुछ पहले जैसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है. फिल्म के पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने लिखा,
Don't fear the paranormal and feel safe with Vibhuti. #BhootPolice. इस पोस्टर में सैफ अली खान लेदर जैकेट पहने हुए एक गोल्डन कलर की छड़ी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर मालाएं बंधी हुई हैं। लेकिन जो बात कुछ नेटिजन्स को पसंद नहीं आई वो थी सैफ अली खान के पीछे बैकग्राउंड में साधु का नजर आना। इसी के साथ एक बार फिर सैफ अली खान और फिल्म के मेकर्स पर हिंदुओं की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के इल्जाम लगना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, भूत पुलिस के पोस्टर पर सैफ अली खान के पीछे हिंदू साधु ही क्यों दिखाया गया है, मुस्लिम क्यों नहीं? तो कुछ लोगों ने सैफ अली खान की इस फिल्म को बॉयकॉट करने तक की बात भी लिख दी है। इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम भी नजर आएंगे। फिल्म की कहानी गोस्ट हंटर्स और उनके एडवेंचर्स के बारे में है। इस फिल्म को पहले तो सितंबर में थिएट्रिकल रिलीज की जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। It will be interesting to see how makers of Bhoot Police deal with upcoming controversy which has started with the poster release itself. तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। इत्लाह ये अर्ज है दुआओं के लिए आपकी, इत्लाह ये अर्ज है दुआओं के लिए आपकी, ठान ली है धर्म ने आपके कुछ फिर कर गुजरने की। आखिर करण जौहर एक बार फिर नजर आएंगे डायरेक्टर के किरदार में। क्या है इस फिल्म की कहानी और आखिर किसे शुक्रिया कहते हुए वेटरन एक्टर धर्मेंद्र पढ़ रहे हैं खास शायरी? सवाल अनेक हैं और जवाब एक है, तो चलिए देखते हैं आज की ये स्टोरी। कुछ कुछ होता है से लेकर ए दिल है मुश्किल तक करण जौहर ने जितनी बार लाइट्स, कैमरा और एक्शन कहा है, ऑडियंसेस को मिली है एक एंटरटेनिंग फिल्म और बॉक्स ऑफिस को ब्लॉकबस्टर हिट। And now Kejo has decided to take the director's seat once again with his next film with Ranveer Singh and Alia Bhatt titled Rocky और रानी की प्रेम कहानी. More details of his comeback film covered with this story. Let's have a look. करण जौहर ने फाइनली बैक टू बैक फिल्म्स और वेब सीरीज प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्टर की जिम्मेदारी को फिर से संभालने का फैसला किया है. And this time the showman will be back with something he's always been good and successful at. It's a love story starring two of the coolest and most successful actors in the lead. Takht is a piece of my heart. I'm going to definitely make that film after the one I'm making right now. I'm making a more contained love story. Of course, it's fun and has all the elements. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी अब केजो की अगली फिल्म में फिर से एक साथ नजर आएंगी. This film will be a love story of a North Indian boy and a Bengali girl, and reportedly, Ranveer will be seen playing a Delhi boy, while Alia will portray the Bengali girl in the movie titled Rocky और रानी की प्रेम कहानी. लेकिन सरप्राइज सिर्फ इतना ही नहीं है. रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में लेजेंडरी वेटरन एक्टर्स धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हुए नजर आएंगे. Speaking to an entertainment portal about being cast in the film, Dharamji said, "I am very happy. You see, I love the camera and the camera loves me. हम लोग एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं, जब मौका मिल जाता है गले लग जाते हैं." फिल्म में अपने किरदार को लेकर उनका कहना है कि वो इस उम्र में भी रोमांटिक कैरेक्टर्स प्ले करने को तैयार हैं. He said, "I am playing a romantic at this age. You know, once a romantic, always a romantic." धर्म जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से खास वीडियो अपलोड करते हुए शायराना अंदाज में इस अपडेट को अपने फैंस के साथ शेयर भी किया. इत्लाह ये अर्ज है दुआओं के लिए आपकी, इत्लाह ये अर्ज है दुआओं के लिए आपकी, ठान ली है धर्म ने आपके कुछ फिर कर गुजरने की. Karan has come up with something really good for me. It is something true to life.
I'll try to live it with your good wishes. So pray for me. I'll give you something nice. Okay? Love you. Well, folks, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Take care and ciao.